سنا سکتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو سارے مذاہب کے اندر ہے اور یہی وہ تصوف کا اصل میں فرق ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں اور یہ جو ساؤتھ ایشیا میں کہ 19ویں صدی کے مڈ سے اب تک ہم اسلام کی ایک بالکل غلط انٹرپریٹیشن کے کانٹیس یا متاثر ہوتے ہیں. اور میں علامہ اقبال چونکہ اس پیریڈ میں رہے ہیں جس میں اس نے 19 سینچری کا بھی اثرات لیے ہیں اور 20 سینچری کا بھی شروع ہوا ایسا. علامہ کی دو میں شعر فارسی میں اور ایک اردو میں ہے وہ بتاؤں گا جس سے ظاہر ہوگا کہ چیلنج کہاں پہ ہے. تو علامہ کا ہے کہ اور مصطفیٰ برسا خوی شراب یہ دین ہمہ اس اگر بنو رسی کی تمام بولا بھی رسی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو آمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ, اس طرف دیکھو, اس طرف پہنچو, کیونکہ دین وہی ہے. آمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ دین ہے. اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکے تو سب کچھ جو باقی ہے وہ عبداللہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اردو میں وہ ہے کہ کسے پتا تھا لے کے چراغ مصطفی آگ لگاتی پھرے جہاں میں عبداللہ بھی. کہ چراغ جو ہے روشنی کے لیے, لیکن اسی چراغ سے روشنی کے بجائے آپ آگ بھی لگا سکتے ہیں. کہ چراغ جو ہے مصطفیٰ کا نام لے کے آپ چراغ لے کے دنیا میں آگ لگا رہے ہیں تو بیسیکلی ابو لہب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے اور وہ بھی عربی میں زبان بات کرتے تھے, اردو بات کرتے تھے, فصیح و بلیغ اور عربی بولتے تھے اور ان کو بڑے شعر پیار تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے اس کانٹیکسٹ میں آج کے کانٹیکسٹ میں یہ خود کی ذرا بات کروں گا کہ کافی عرصے تک جو مکتبہ فکر ڈومیننٹ رہا وہ دیوبند اور اہل حدیث رہا پاکستان میں. اور اس کا نتیجہ اللہ کے ہر جگہ پہ مسجدوں کے اندر دھماکے ہونے لگے اور سب لوگ کافر جو ہے وہ کہے جانے لگے سوائے اس پر عید الفطر. کچھ عرصے سے اسلام میں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے یہ ریلی سلسلے کے لوگ ہیں. دونوں میں کامن چیز نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے تشدد, وائلنس. اب تصوف کا کی مینیفیسٹیشن تشدد نہیں ہوتا, مذہب کی بھی نہیں, مذہب کوئی مذہب نہیں کرتا, مذہب کہتا نہیں ہے لیکن مذہب کے اندر یہ ہوتی ہے. مذہب میں لوگوں نے اس کا جو جس کو کہنا چاہیے کہ نظریہ اس کو تبدیل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا رکھا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت کے اندر ایک روم رکھ دیا ہے ہر مذہب کے اندر, اور وہ روم جو ہے وہ تصوف ہے. ویسے اس کا نام آپ کچھ بھی دیکھیں اسلام کے اندر نہیں, مہابھارت کی کہانی کی تو ایک طرف چچا دادا اور اس طرح کے دوسرے طرف دونوں رشتے دار. تو اس نے کہا کہ ارجن نے کہا کہ وہ تو میرے جو ہیں وہ چچا ہیں, میرے کزنس ہیں, اب یہ کون سی جنگ ہے. تو کرشن نے جو خطاب دیا وہ آپ کے بعد میں گیتا بن گیا جس میں وہ کہتا ہے کہ یدھ کرنی پڑے گی, ایک جنگ کرنی پڑے گی. یہی جگہ یہی وقت آیا جنگ بدر میں کہ ایک طرف جو ہے وہ والد کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے, کزنس کھڑے ہیں, چچا کھڑے ہیں, ایک طرف عام رسم کھڑے ہیں, دوسری طرف چچا عباس کھڑے ہیں. تو یہ پھر کیا ہوا کہ جنگجوئی کو جنگ کرنی ہے. لیکن اس انسان ذات جب ایک ایسے کی انلائٹمنٹ کے ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے جو اس میں 21 سینچری ہے کہ نبوت بھی ختم کر دی گئی, خدا کی حجت ختم ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں آیا. مذہب اور تصوف میں بھی مسائل ہیں, مذہب اور تصوف میں بھی بات واضح نہیں ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت ختم ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب انسان ذات کے شعور کو اتنا بلند سمجھا گیا ہے کہ وہ اب اپنے مسئلے کو سالو کر سکتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کنفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم خود اپنے ملک میں کنفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کنفلکٹ کو بچانے کا سب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک طرف 6, 8, 10 میرا کہہ رہے ہیں کہ مزارات میں مولانا جلال الدین رومی, قلند لال شہباز, سچر سرمست, شاہ الدین بٹائی اور شاہ عنایت اور بیدل اور سائیں دولت. اور ہر مزار کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح سے لوگ باہر ڈانس کر رہے ہیں. اب یہ مینیفیسٹیشن ہے, انٹرپریٹیشن. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ سب کو بھی کھڑا کر کے ایک طرف ہم بیٹھتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ان سب کے اندر بھی ایک جو ہے وہ کثرت جو ہے. اور دیکھیے یہ فارسی میں جب یہ مولانا جلال جامی کا کلام گا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فارسی کا پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ
متاثر ہوتے ہیں. تو یہ فائنل ایک حل ہے. لیکن ایک میں نقطہ کہ بہت مس یوز کیا گیا ہے تصویر اور بہت مس یوز کیا گیا ہے کہ لوگ آج کل کے ماحول کے حوالے سے پتہ کچھ نہیں, پڑھتے کچھ نہیں, نہیں کوئی ریلیشن شپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے اسلامی کے بارے میں, شادی کے تصوف کے بارے میں بات ہے. مجھے تو تصوف کی سمجھ آتی ہے, لیکن جو جس نے 6 دن سے کھانا نہیں کھایا اسے نہیں پتا تصوف کیا ہوتا ہے. تصوف ہے ہی تصوف میں بھی کھانا نہیں, یہ جو روزے رکھتے ہیں, جو چولہے نکالتے ہیں, کیا آپ بیسک اس کی طرف لیا کرتے ہیں. جب آپ بیسک کی طرف جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بنیادی انسانی تقاضائیں کیا ہے. انسان رہے گا جب تک ہم واش روم میں جاتے ہیں, ہمارے اندر ہم فرشتے نہیں بن سکتے, گناہ کریں گے. ہم نے فرمایا کہ گناہ جو ہے, دیکھیں علامات انسان کی بڑا سبھی اس کے اوپر ہے کہ گناہ موٹیویٹنگ فورس ہے. جب تک گناہ نہیں ہوگا سویلائزیشن آگے نہیں بڑھے گا. ہم نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے, خدا اس قوم کو ختم کر دے گا, پھر ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گا اور اسے معافی بہت بڑی. جی ہمارے جس صاحب میں ہمارے سامنے لگے تو نام وہ چاہ رہا تھا. مجھے بھی نتی گزارش اصل میں فکری موافقات जेके तसव्वुफ़ मदद व इन जे बारे में थिया, ॿ इंतहान दो एक्सट्रीम्स हैं. देयर आर टू एक्सट्रीम्स. जो मज़हबी लोग हैं वो इंसान को मलाइक बनाने के चक्कर में उहे माण्हू खे चवनि था तूं इंसान जी जहिड़ो फ़रिश्तो थी वञ. जेको मटीरियलिस्ट आहे, मादेवादी फिक्र ते बीठो आहे, वो इंसान को शैतान बनाने के चक्कर में है. तो तू लुट वसीला ईअं वणे थी, खा पी तुंहिंजो आहे, जेका सॼे पिटी तो वटा तूं हिन में ई सभु कुझु कर, इहो सभु तुंहिंजो इख्तियार. पर तसव्वुफ़ माण्हू खे इंसान थियणु सेखारे थो. उन माण्हू खे फ़रिश्तो थियणु जो चवे थो, न इंसान खे शैतान थियण जो चवे थो. तसव्वुफ़ उनखे ओॾां वठी वञे थो. ऐं तसव्वुफ़ हिननि जेके बि दोस्त मसूद की ॻाल्हि कई त इहे जोग्राफिकल बाउंड्रीज़, मुल्क, सूबा, जिते बि असां चऊं, तसव्वुफ़ उन्हनि खां हटी करे मथे वधे थो. ऐं तसव्वुफ़ में सिर्फ़ु शाइरी न आहे, तसव्वुफ़ में मलफ़ूज़ात आहिनि, तसव्वुफ़ में वो नसब आहे. ऐं तसव्वुफ़ में उहे ॻाल्हियूं थियनि थियूं जेके न मज़हब में करे सघजनि थियूं, न साइंस में करे सघजनि थियूं. तसव्वुफ़ जो हिकु ई नुक़्तो तव्हांखे ॿुधायां थो कीअं साइंस खे एक्सीड करे थो. साइंस जी हिकिड़ी इक्वेशन आहे, E is equal to mc square. अल्बर्ट आइंस्टाइन जी मशहूर इक्वेशन आहे जंहिंमें c कांस्टेंट आहे. हुन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ॿुधायो आहे. असां सभु हिकिड़े सॼी काइनात कंहिं न कंहिं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आहे. उहो उतां खां शइ खे पर्सपेक्टिव में ॾिसे थी मुख़्तलिफ़ नमूने सां. ऐं हुन में c कांस्टेंट इन करे आहे त अञा ताईं असां वटि स्पीड ऑफ लाइट खां का बि वॾी शइ ॿी न आहे माण्हू मापो. ॿियो असां काइनात जी शयुनि खे कछण मापणु शुरू करियो. इंसान काइनात खे कछे मापे थो, तोरे तके थो, पंहिंजे ज़हन ऐं हुन जे हिसाब सां. सूफ़ी वटि, तसव्वुफ़ वटि उहो जेको वक़्त ते ऐं हुन स्पीड ऑफ लाइट खां बि वॾी हिकिड़ी शइ आहे. ऐं उहो जेको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ बॉक्स वञी सोचे थो जॾहिं, तॾहिं हू वक़्त ते बि पंहिंजी जेको आहे कंट्रोल करे थो. ऐं सूफ़ी ईअं उन साइंसदान खां अॻिते लंघे वञे थो. इल्मु ॿाहिरि न आहे, इल्मु सभु अंदरि आहे. डिस्कवरी इल्मु आहे. मोबाइल फ़ोन अॼु असांजे हथ में आहे, मौजूदे जहिड़ो नज़र अचे थो. 50 साल अॻु मोबाइल असां हुयो ई न. हिन जो मतिलबु इहो न आहे त मोबाइल इंसान जे ख़्याल में न हो. इंसान जे ख़्याल में सभु कुझु आहे. हीअ लखे न्यूरॉन्स हिन मां पंहिंजे 10% ताईं एक्टिवेट थिया. इहे जॾहिं 100% एक्टिवेट थींदा त माण्हू जो जवाब ई न आहे. माण्हू न मलाइक थियण जे चकर में पवे, न माण्हू शैतान थियण पोयां डोड़े. छाकाणि त माण्हू मलाइक ने सजो कयो आहे, माण्हू सां शैतान असरत रखी आहे. इंसान पंहिंजे तव्हां बिल्कुलु सही था चओ. शायद अब्दुल लतीफ़ भट जो इहो ई तस्वुरु आहे. सूफ़ी कॾहिं बि नफ़रत न कंदो. सूफ़ी राह ॾेखारे थो भटके रखे मुहबत सां. असांजा जेके जदीद मुआशिरा आहिनि उहे इंसान जे ख़ामियुनि खे क़बूल नथा कनि, जंहिंजे करे असां पंहिंजे चहिरे ते घणा ई चहिरा पाए छॾियूं था. हिकु नक़ाब न आहे पर केतिरा ई नक़ाब आहिनि. सिर्फ़ु इन करे त असांखे ख़बर आहे त असांखे
माशूरा समाज क़बूल न कंदो, पर सूफ़ीअ वटि इहा सोच कोन्हे। उहो जेका इंसान जी ॿियाई आहे या इंसान जी जेका बुराई आहे उनखे हक़ीक़त पसंदी सां उनखे मञी ॾे, उनखे सिधे राह तां वठी वञे थो। ऐं साॻे तरीक़े सां शाह अब्दुल लतीफ़ भिंडारी बि चयो आहे त वण खां सिखो, छांव ॾिए थो, उस सही। मदन ते हिकिड़ो बैर शाह लतीफ़ जो यादि अचे थो त कीअं माण्हू सॼो स्टेट ऑफ माइंड आहे, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, टई जेके तसव्वुफ़ जा कांसेप्ट उन्हनि खे असां हिते सम्झाइण नथा उनजी ॾेख थींदी नथा वञणु चाहियूं, पर स्टेट ऑफ माइंड आहे। उनमें हिकिड़ी स्टेट मां तव्हां ॿिए ॾांहुं वञो था, तव्हां का रांदि कई हूंदी, तव्हां कराटे ताईं, जंग ताईं, फौजी वारफेयर में सिखो था, स्टेट ऑफ माइंड ते तव्हांखे कंट्रोल करिणो आहे। बेटा चयो आहे त जिन हितां खणी हुत रखियोसीं रसियो, साजन सूम सुर्ख विखाई वेझो करणो। बेटा जीअं स्टेट ऑफ माइंड खे मोटिवेट करे थो, ईअं आउं सम्झां त कोई माण्हू मोटिवेट न कंदो हूंदो आहे। स्टेट ऑफ माइंड खे ठीकु करणी आहे त माण्हू मज़बूत बि आहे, माण्हू इंदौर जो आहे, माण्हू अमन चाहींदो। जेका नफ़रत, जंगी जुनून, इहे त सभु उन बादशाहगीरीअ जो हिकिड़ो इज़हार आहिनि जेका माण्हू में माफ़ी तफ़श पैदा कई आहे। माण्हू बाला थियो आहे, माण्हू फितरत खे विकिणण जे चकर में आहे, माण्हू तेल बि विकिणे थो, सोन बि विकिणे थो, वण बि विकिणे थो, पाण खे बि विकिणे थो, पंहिंजा आदर्श विकिणे थो, पंहिंजो आसो उमंग बि विकिणे थो। माण्हू फितरत खे फितरत सम्झे, फितरत रेड आणे आहे, माण्हू फितरत खे नाणे ते छो लॻाए? तसव्वुफ़ इहो ई सेखारे ऐं तसव्वुफ़ ॿियो। तमाम बिल्कुल सही चलो। मेरे पास आपके हवाले से बहुत एक अहम सवाल है। इससे पहले कि वो जहन से मेरे निकल जाए, पाकिस्तान की मज़ारें लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। लोगों के पास कोई वसीला नहीं, कोई रहबर नहीं, तो वो मज़ारों की तरफ जाते हैं और उनका यकीन उन्हें शुबा अता करता है। लेकिन इसके अलावा भी मज़ारों का अपना एक किरदार है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों के लिए लोगों की सोच मज़ारों में जाके कैसे तब्दील होती है, और जो तोहम परस्ती है मज़ारों के हवाले से, उसका कैसे खात्मा होना चाहिए? ऐसा है कि तोहम परस्ती तो कहीं इंसान जिंदा रहेगा, बाकी उसके बारे में सोचा जाएगा। आजकल जो पाकिस्तान में ज़िंदगी है, यहाँ पे तो भाई भी दुख की बात नहीं सुनती, हमसाया भी मदद को नहीं आता। एक ऐसी अफरा तफरी है, एक ऐसा वाशा बन चुका है जिसने मुझे बताया कि कैथारसिस कहाँ करेगा, कहाँ अपना दुखड़ा रोए। ये जो दरबार है ये तो उनके लिए आखिरी सहारा है। मैं कतन कुशेर के हवाले से नहीं कह रहा, अल्लाह आखिरी सहारा है, लेकिन वहाँ जाके वो रो भी सकते हैं, सहल बाजार से बातें भी करते हैं, वहाँ वो रह भी सकते हैं, उनको लंगर में मिलता है, उनको रोटी की फिक्र भी नहीं होती, कहता है ये देगा अल्लाह, इसके वसीले से देगा, तो वो देता है। वो सारी जिंदगी वहाँ है, उसको अल्लाह ताला वहीं देता रहेगा। तो हकीकत ये है इसका शिर्क से दूर का वास्ता नहीं है, इसका सुख से, इसका दुख बांटने से वास्ता, इसका अपना टुकड़ा सुनाने से वास्ता यही है। अगर इसको आप टुकड़ा सुनाने को आप अपने आप को वहाँ जाकर कैथारसिस करने को चले गए तो शायद वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लोगों की जिस तरह से सोच है कि वो मज़ारों पे जाते हैं, जैसे शाह लतीफ़ भिंडारी की मज़ार पे भी जाते हैं जो कि बहुत बड़े आला पाए के मुफक्किर, तो कहते हैं हमें औलाद की दौलत से नवाजो, औलाद की नेमत से नवाजो, अच्छी नौकरी मिल जाए, जिस जगह शादी करना चाहते हैं उससे शादी हो जाए। तो ये जो तोहमत परस्ती है, इसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि ये किस हद तक सही है। इसके ये है कि अगर आप अपने आप को लिंक कर लेते हैं अल्लाह से किसी वसीले से, तो हम रसूलुल्लाह पाक के हैं। हम ये समझते हैं कि सूफिया जो है वो किसी मोहब्बत के इश्क की एक ऐसी गैर महसूस नजर आने वाली चीज़ है जिससे वो जुड़े हुए हैं, और जो उनके पास आता है वो से। जी, आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि जो राब्ता है वो राब्ते का ज़रिया है, और मैंने साइंसी तौर पर कहीं पढ़ा था कि मज़ार की साइंसी जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि जहाँ पर अगर कोई
اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جب ننگے پاؤں ہم مزار پہ چلتے ہیں اور ننگے پیر ہم جب وہاں پر جاتے ہیں مدینے، تو جو زمین کے پازیٹیو آئنس ہیں وہ ہمارے علاج کرتے ہیں. اور خوشبو کے لیے کہتے ہیں کہ خوشبو ہمارے ریپٹیلینس برین کو موٹیویٹ کرتی ہے. ہم نفسیاتی طور پر زیادہ منحرف ہو جاتے ہیں. یہ تو سائنس بھی بتا رہی ہے. لیکن بہرحال ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں اس ملک کے، جتنے بھی صوفی شعراء ہیں، انہوں نے سماجی شعور کے حوالے سے بہت بڑی وہ تبدیلیاں لے کر آئی ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے انسان کو کچھ شناسی سکھائی ہے اور اس کے بعد انہیں خود انحصاری سکھائی ہے. اب سیکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیا سیکھتا ہے. وہ روشنی لیتا ہے یا پہلے سے اس کے دل میں اندھیرا ہے کہ روشنی اس کے لیے فائدے مند نہیں ہے. کیونکہ عطا کرنا ہنر ہے تو وصول کرنا بھی ایک ہنر ہے، ایک سلیقہ ہے. اور صوفیزم و تصوف کا تعلق عطا کرنے اور وصول کرنے کے بیچ کا ایک بڑا ہی باریک اور خوبصورت فاصلہ ہے. جو فاصلہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بھی سمجھ جائے. باتیں ہوتی رہیں گی چونکہ میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن میں چاہوں گی مایو چاہیے دستہ سنجا جی کے نوجوان ہمیشہ یہ تھی دعا نشست ختم تھی دیا سدراگ جو کو سا غلط ہے ختم تھی دعا یہاں تک کمپیئر کیوں کھڑا غلط دعا وہ کوشش کی ته گھٽ ڳالهايان हिननि खां वधीक ॻाल्हायां त नौजवाननि खे मां मौक़ो ॾींदसि. तव्हांजे ज़हन में जेकॾहिं सवाल आहे त इहे महिमान तव्हांजे साम्हूं वेठा आहिनि, तव्हां हिननि खां बिल्कुलु बिला झिझक सवाल करे सघो था. पर सवाल ॻाल्हि न हुजे, सवाल हुजे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद है और मैं सिंध यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट फाइनेंस में पढ़ता हूँ. डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि चूँकि सिंध जो है वो सूफिया की धरती है, लेकिन अभी भी सिंध में बहुत सारे लोग भूख मर रहे हैं. हम फिर भी कहते हैं कि सिंध सूफिया की धरती है. यहाँ पे जो लोग या नौजवान जो आते हैं, मैं कोई भले मुझसे डिनाई करे, लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूँ कि 70% जो यहाँ पे नौजवान आते हैं वो जस्ट फॉर एंजॉय आते हैं. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सूफीज़म है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जैसे कि शराब हो गया या इस किस्म की जो लैंग्वेज शेर व शायरी में होती है, तो इसको नौजवानों को बड़े आसानी में कैसे समझाया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते कहते हैं कि सूफी हैं. भैया आप कैसे सूफी हो गया? आपने सुना नहीं कि वो फिलहाल सूफी शायरी पढ़ रहा था, या जैसे जो है आप शाह लतीफ़ की शायरी पढ़ें तो वहाँ पे है कि आशिक ज़हर भी आकर बह जैसी बेसन गाऊं. बहुत हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन इसको आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए और सिंध में जो नौजवान हैं उनको ये आसानी से कैसे समझाया जाए? आपसे मेरा सवाल है. क्योंकि ये जो सवाल कर रहे हैं मौलाना रूमी ने भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से शायरी की है. अब उसका क्या हवाला है, आप ही इसकी वजाहत कीजिए. बहुत मुनासिब सवाल के बेटा आपने इस वक्त, और यही वक्त का खादा भी है कि हम महफिलें तो जा रहे हैं, जो शुरू हो रही है, और नौजवानों के अजहान में उबलते हुए सवालात को शायद हम अपनी माजी के बुजुर्गों के वाक़यात की नज़र करके बैठते हैं. रियलिस्टिक अंदाज तो ये है कि मौजूदा दौर के तकाज़ों को उसी तनाज़ुर में देखा भी जाए और समझा भी जाए और मुतमईन किया जाए. खुशखबरी है कि अगर आप लोग, हम तो सफेदी में आ गए, अगर आप लोग वाक़ईअन डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम बनना चाहते हैं तो आपको एक तरफ होना पड़ेगा. दो कश्ती का सवार कहीं नहीं पहुँचता है. एक जानिब हमें ये फिक्र है कि हम तंगी में हैं, तो मुझे बताइए कौन से अंबिया और औलिया कुशादगी में रहे? अगर कुशादगी अल्लाह ने देनी होती तो अंबिया को देता ना. ये कैसी सोच है कि हम अल्लाह से मोहब्बत की बात भी करते हैं और फारिगुल वाली भी चाहते हैं. सबसे पहले ध्यान क्लियर कर लीजिए कि उसकी मंशा क्या है. मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है. मोमिन के लिए ये दुनिया क्या है? कैद खाना है. अब इसे हम जन्नत बनाने चक्कर में लगे हुए सारे, हो सकेगा? वही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो
आम पुराना है। आज जो तसव्वुर फैला हुआ है कि अहलुल्लाह से गलत समझ जी अहलुल्लाह से जुड़े हुए हैं, तो क्या चीज़ हमारे इसके अंदर भारत उठा लिया है, दुनिया की सारी आशाइशें आ जाए। अगर आना होता तो शाह साहब ने कैसी जिंदगी गुजारी, शुरुआत कैसे की, मिठाई शरीफ में क्या मामला थे, शुरुआत किस अंदाज में की और हम उनको कैसे नवाजा। अगर इल्म का ये शोबा जिसका हम राफिज है, हम मौलाना पे पीएचडी कर रहे हैं, मौलाना पीएचडी थे, मौलाना खुद पीएचडी नहीं थे, उनके पास ताल्लुक बिल्लाह की वो कैफियत थी कि हम आज उन पर पीएचडी कर रहे हैं और इजाज़त हासिल कर रहे हैं। उनके पास तो इरफान ज़ात का मौजूद था, अल्लाह की पहचान का मौजूद था, अंबिया के अंदाज में कनात पसंदी का मौजूद था, उनको तो राज़ी व रज़ा थे। आपको सवाल ये कि हम वाक़या सुनते हैं, शराब जो है पी रहे हैं और फिर तसव्वुफ से भी जुड़े हुए हैं, अगर किसी की इनफरादी फिक्र हम उसको इज्तिमाइयत का कैसे ले सकते हैं, उसका इनफरादी अमल है, गालिबन वो दुनिया जमा करने के लिए अपने आप को उस रंग में पेश कर रहा है, तो उसको हम सिंबलाइज नहीं कर सकेंगे। किनको करेंगे? जब गौर करेंगे अंदाजा हो जाएगा। हर उस मुकाम पर जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को असे के साथ भेज दिया। क्या लाजशाबाद अल्लाह रहमतुल्लाह जब तशरीफ लाए होंगे तो क्या हाल होगा तशरीफ का? उस अल्लाह के दोस्त उस फकीर ने किस मुश्किल से उस जगह के असरात को ख़त्म करके अल्लाह की पहचान का सिलसिला शुरू कराया होगा। तो तसव्वुर करें कि हम इस वक्त के हालात को देख रहे हैं कि शाह साहब के पास बहुत लोग आते हैं और नसरत साहब में बहुत लोग आते हैं, खुद उनकी अपनी ज़िंदगी क्या है, मुजाहिदे की ज़िंदगी है। मैं पिछले सवाल को रिलेट कर देता हूँ यहाँ पर कि अहलुल्लाह के मज़ारात क्या हैं दोस्तों, और फरमाते हैं कि उन मिट्टी के मज़ारों में जिंदा मौजूद रहते हैं और इस गोश्त के वजूद में मुर्दा रूहें रहती हैं। जो तलवार के जख्म से शहीद होकर वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून पढ़ चुके आप कि एक जंग और महाज पर एक जख्म से गोली से या तलवार से शहीद होने वाला शहीद कहलाता है और उनको मुर्दा ना समझो। तो पूरी जिंदगी ये जो नफ्स के साथ जहाद करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं उनका मुकाम मर्तबा फिर क्या होगा? हमको कैसे समझ सकते हैं कि रोटी और सालन की ग़िज़ा उनकी ग़िज़ा है, अल्लाह को ग़िज़ा देता है जिसके हमारे शऊर भी नहीं। वहाँ जो बीबी फरमा रही थी कि वहाँ से साइंसी एतबार से एक्सप्लेनेशन हो रही है, माज़ूर के साथ कहूँगा उससे कहीं अगला मतलब है। आसिफ ने बर्किया ने ना फासला पूछा, ना तख्त का वजन पूछा, ना सिर्फ पूछी और लम्हे में तख्त को जाहिर कर दिया। काश कि हम उसके ऊपर सफ़र कर रहे होते तो हमारे अंदर साइंस से भी अगली मंजिलों की मामला हमारे अंदर परवान चढ़ते, क्योंकि हम मादियत का शिकार हो गए तो मुश्किलात का शिकार हो गए। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए पहले मरहले में इनर क्लिंचिंग का मामला है, क्योंकि लतीफ़ भी लतीफ़ से राब्ता कायम कर सकेगा। कसाफत के साथ दुनिया ताबी के साथ अल्लाह के दोस्तों ताल्लुक़ कायम नहीं होगा। दोस्तों इसको क्लियर करने कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि लताफत ही लताफत को खींचेगी अपनी जानिब, कसाफत कभी लताफत को अपनी जानिब जो है मायल ना कर सकेगी। कमी इस जानिब है दोबारा आलम वजूद में हमारे पास आज भी कोई एक अंबिया को दी गई, आम भी कोई एक अंबिया को दी गई, समाधि भी कोई एक अंबिया को दी गई, अल्लाह को दी गई। क्या वो एक्टिव हैं? एक्टिव हैं। सलमान कई कोस के फासिल चूड़ी की आवाज़ सुनते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं। अब क्यों नहीं सुन रहे? डिवाइसेस तो सारी वही है, डिवाइसेस तो सारी वही है, आँख भी वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, मगर एक्टिव नहीं है। अल्लाह का मुकाम मर्तबा है कि लिबास बशरियत में भी और अपनी हयात बशरी के बाद के दौर में भी मखलूक की फैज़ रसानी के लिए है। सिर्फ तफक्कुर ने काम की है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, गड़बड़ ना किया जाए और आज ये से ताल्लुक़ जोड़ा जाए। सारे सवालात के जवाब जो जानते हैं वो जानते हैं कि साहिब मज़ार से ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो मामला समझ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका सवाल क्लियर हो गया हो। सूफी कोण हुजे त चर्च पियो, भले सूफी कोण हुजे त चर्च पियो, मां घर में बीमार हुजे ऐं नौजवान चवनि असांखे सूफी था चवनि त चर्च पियो, इहे कोन थींदो आहे। असांजी ज़िमेदारी हूंदी आहे, असां उन खे मनसूख़ नथा करे सघूं उन सूफी फिक्र सां। इहो तव्हांजे अंदरि जो फ़ैसिलो आहे, छा ग़लति आहे तव्हांजे लाइ, छा सही आहे, इहो तव्हां रोशनी तव्हां जेके ॿाहिरि था ॻोल्हियो कहिड़े रोशनी खे पंहिंजे अंदरि में ॻोल्हियो, तव्हांखे सवालनि जो जवाबु मिली वेंदो। पोइ ॿियो सवालु आहे त ॿुधायो शायद मुझे सवाल ना हो,
से मेरा नाम रफ़ीक हसन और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हूँ एंथ्रोपोलॉजी, और आजकल मैं सूफीज़म के स्विट्ज़रलैंड में PhD कर रहा हूँ। एक दो वज़ाहत मैं करना चाहूँगा सूफीज़म के हवाले से, कन्फ्यूजन से। मेरे ख्याल से उस हवाले से मसूद भाई ने कुछ बात की। मेरे ख्याल में जब हम सूफीज़म की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन हम ये करते हैं कि हम उसको मटीरियलिज्म या मटीरियलिटी के साथ तोड़ देते हैं, या उसको सेपरेट करके देखते हैं, या उसको हम सिर्फ मिस्टिकल अंदाज में या एक डेफिनेटिव अंदाज में देखते हैं। मेरे ख्याल से इस कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैडम ने भी कहा कि सूफियों ने जिस हवाले से रिसेंटली में या अपने मुस्लिम मुआशरे में समाजी शऊर के हवाले से जो जितना रोल प्ले किया है वो मटीरियल कंडीशन से अलग नहीं है, ठीक है, या मटीरियलिटी से अलग नहीं है। यानी जब हम ये बात करते हैं कि सूफीज़म सिर्फ खुद शनासी या सदी में जैसे हम कहते हैं कि 5 मिनट की बात करता है, तो मेरे ख्याल से इस कन्फ्यूजन को अभी इस स्टेज पर हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि जो न्यू इंटरप्रिटेशन हुई हैं सूफीज़म के हवाले से, ना सिर्फ तसव्वुफ या सूफीज़म के हवाले से मगर बाकी मज़ाहिब के अंदर भी, जैसे जुडाइज़म में कबाला ट्रेडिशन है, या क्रिश्चियनिटी के अंदर स्पिरिचुअलिज्म है, या बुद्धिज़्म खुद बड़ा स्पिरिचुअल रिएक्शन था हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम के खिलाफ। तो अगर हम सूफीज़म को सिर्फ ये कहेंगे कि ये एक खुद शनासी और अंदर उजाड़ने की बात है, तो मेरे ख्याल से तसव्वुफ की एक बड़े सोशल करंट और सोशल मूवमेंट के साथ ये बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि तसव्वुफ एक बड़ी सोशल मूवमेंट बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट के नुक्ते नज़र से देखना चाहिए। जिस तरह आजकल बड़े नए तजर्बे हो रहे हैं न्यू इंटरप्रिटेशन बुद्धिज़्म के हवाले से, बुद्धिज़्म के हवाले से न्यू एक टर्म इस्तेमाल होता है, मसूद भाई को शायद पता हो, सोशली इंगेज्ड बुद्धिज़्म। दिस काइंड ऑफ बुद्धिज़्म which they call socially engaged Buddhism, it talks about human rights, it talks about women's rights, it talks about environmental degradation, and even anti-capitalist currents in socially engaged Buddhism. तो तसव्वुफ के हवाले से भी जो पहला जो काम हुआ है 70s में 50s में, जिसमें ज़्यादातर मिस्टिकल से कहा गया है, मेरे ख्याल से उसे हमें बाहर निकलना चाहिए और तसव्वुफ को समाज के साथ जोड़ना चाहिए, सोसाइटी के साथ जोड़ना चाहिए। उस फिक्री मूवमेंट है, जो सोशल थॉट है, उसे कम्युनिकेट करना चाहिए यूथ में। अब वो वाला ज़माना नहीं है कि आप लोगों को कहें कि गार्ड में जाके और वहाँ पे मेडिटेशन करेंगे या जाके वो करें। मेरे ख्याल से आज फाइनल में करना चाहिए, फाइनली आगे में करना चाहिए। तसव्वुफ को साउथ एशियन सोसाइटी के आज के ज़माने में साउथ एशिया के अंदर तसव्वुफ को एक भरपूर किस्म की काउंटर कल्चरल मूवमेंट में हमें ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, अगर सोशल चेंज लानी है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जदीद दुनिया के हवाले से जो अॼुकल्ह रोल आहे उहो उन जे हवाले सां देखें, जो फेल हुआ है ना, जो अब क्यों हमें रिवाइव करने की जरूरत पड़ रही है, फेल होने की वजह यही है कि जो खानकाएँ थी, जो दरगाहें थी, उनके जो कभी नशीन थे, वो अपने कंफर्ट में बैठ के खुद मदद कर रहे होते थे, बाकियों कर रहे थे कि तुम चले करो। कभी भी ये पर्पज नहीं है, और कभी भी मैं कहूँगा कहीं पे ये नहीं है कि हम खुद शनाख्त की बात करते हैं, हमारा पर्पज जो है लोगों को रहबानियत की तरफ ले जाना, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मुझे ये बताएं, शहादत मिसाई को ले लें, सज्जद समद को ले लें, या आपके शाह नायक को ले लें, इवन आप रोज़े खड़ी को ले लें, सब बुजुर्गान में से कौन सा एक बुजुर्ग कि आप ये कह सकते हो कि वो रहबानियत को प्रमोट करते थे और सोसाइटी से आइसोलेट होते थे? नहीं। मैं समझता हूँ कि शहादती बिजाई की उम्र जो है 64 से उनका विशाल हो, 20 साल की उम्र में वो घर से निकले, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सफ़र में गुजारी, और पूरी ज़िंदगी में उन्होंने पूरी सोसाइटी को इवेल्यूएट करके एक नए तरीके और नए डिक्शन में ले आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि नए पुराने सूत्रों में और नए सूत्रों में ये बात है कि कोई रहबानियत की प्रमोशन चाहता है, बिल्कुल नहीं। अब और ये कहना कि
खुद शनासी का ताल्लुक जो है सोसाइटी से नहीं है। मेरा ख्याल ये बहुत गलत फहमी है, आप अंडर सकते हैं। फर्क का जो है सबसे पहला की हदीस है, माना तो नफ्स हो फकदर करब हो, जिसने अपने आप को पहचाना वही खुदा को पहचाने। तो सोसाइटी में रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने आप खुदाशनासी और खुदशनासी का कोई ताल्लुक नहीं है रहबानियत से। और आखिरी बात ये कि इस वक्त जिस थ्रेशोल्ड के ऊपर दुनिया खड़ी है या हमारी सोसाइटी खड़ी है, उसमें भी किसी भी मरहले पे सवाए उन लोगों के या उन फौरन के तो अभी भी तसव्वुफ को अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बेशक वो करता हो या कोई बाहर का बंदा हो। बाकी हर मकतब फिक्र जो है समझता है कि वाहिद तसव्वुफ जो है वो इंसान को ज़ाती तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी एक ऐसा नज़र या एक ऐसा लाए अमल देता है या एक ऐसा क्यूआर देता है जिसे दुनिया में इंसान ज़ात जो है अमन पुरअमन तरीके से सुकून के साथ रहेगा। अमेरिका में 95 से 98% लोग जो है डिप्रेशन से हैं। दुनिया में डिप्रेशन की बोझा खाना या शराब पीना या इस तरह की करारियत के करने का सबब ये है कि इंसान को बाकी सब चीज़ें हासिल होने के बावजूद अंदर का सुकून जो है वो नहीं होता। यूरोप में क्या सुन रहा है, आप यूरोप को देखिए, हर चीज़ मौजूद है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, हर चीज़ है, लेकिन जो वो ओरिएंटेशन है, आप मेरी बात को इस तरह नहीं समझिएगा कि मैं कोई रहबानियत की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं की जाए। मैं कह रहा हूँ कि जब ये हम ओवर एम्फेसाइज करते हैं कि खुदशनासी ही